اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید اقتدار علی خان اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں سورہ نجف۔ یہ ماہ رجب المرجب سن 1446 ہجری ہے، اور میں دل کی گہرائیوں سے آپ تمام اہل مودت کو، اہل ایمان کو اور اہل اسلام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 3 مہینے متواتر رجب المرجب، شعبان المعظم اور رمضان المبارک یہ سلسلے سے ہیں جس میں بے شمار خوشیاں ہیں۔ خاص کر شعبان المعظم جو ہے اس میں کسی امام کی شہادت نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، کسی امام کی شہادت کی تاریخ نہیں ہے، جبکہ رجب کے مہینے میں امام نقی علیہ السلام کی بھی شہادت کی تاریخ آتی ہے۔ 13 رجب المرجب جب مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، مولود کعبہ کہلائے۔ میں ان نوجوان لوگوں کی طرح تو موسیقی کے اوپر آپ کے القابات نہیں پڑھ سکتا ہوں، مگر جتنے بھی مجھے یاد ہے میں کوشش کروں گا وہ آپ کی خدمت میں القابات جناب امیر کے پیش کر سکوں۔ ہم تک جو تعداد پہنچی ہے کم و بیش 1000 سے اوپر ہے، جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے القابات ہیں، جس میں مشہور و معروف القابات ید اللہ ہے، عین اللہ ہے، لسان اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، جنب اللہ ہے، اذن اللہ ہے، فاتح بدر و احد ہے، حنین ہے، خندق ہے، خیبر ہے۔ آپ یاسب الدین ہیں، ابو الائمہ ہیں، ابو تراب ہیں، حیدر کرار ہیں، غیر فرار ہیں، ایلیا ہیں، ابو الحسن ہیں، زوج بطول ہیں، کشاف القروب ہیں، قاتل الناقصین ہیں، قاتل المشرکین ہیں۔ آپ اخی رسول ہیں، وصی رسول ہیں، داماد رسول ہیں، مولود کعبہ ہیں۔ آپ کے القابات میں ارتضیٰ ہے، مرتضیٰ ہے، نقطہ با ہے۔ آپ صالح المومنین ہیں، قائد غر المحجلین ہیں، جناب امیر ہیں، مشکل کشا ہیں، مظہر العجائب ہیں، مولا کائنات ہیں، مولا متقیان ہیں، امیر عرب ہیں، جناب امیر ہیں، حلال مشکلات آپ کے مشہور و معروف القابات میں سے ہے۔ آپ عدد اول ہیں، نور اول ہیں، مخلوق اول ہیں، بشر اول ہیں۔ آپ ساقی کوثر ہیں۔ آپ حافظ قرآن ہیں، محافظ قرآن ہیں، قاری قرآن ہیں، ناشر قرآن ہیں۔ آپ قسیم النار والجنہ ہیں، صاحب اللوائل حمد۔ یہ آپ نے جب مجالس پڑھی جاتی ہیں اور خطبہ پڑھا جاتا ہے تو آپ نے صاحب اللوائل حمد کے بعد ابو القاسم محمد سنا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قاسم کے باپ پر درود و سلام ہو۔ یہ جناب قاسم علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے تھے، جن کا جب نام آتا ہے ابو القاسم، یعنی رسول اللہ پہ سلام بھیجا جاتا ہے، درود پڑھی جاتی ہے اور کو تعظیماً سر احترام کے لیے جھکایا جاتا ہے۔ آپ صاحب اللوائل حمد ہیں۔ صاحب اللوائل حمد کہتے ہیں طویل ترین پھریرے کا مالک۔ طویل ترین پھریرا علم کا جو ہوگا، کیونکہ سپہ سالار سب سے پہلے داخل ہوگا جنت میں، اس کے پیچھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری آ رہی ہوگی، اور وہ جلوہ افروز ہوں گے مقام محمود پر، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام طویل ترین پھریرے کا علم لیے ہوئے سایہ فگن ہوں گے رسول خدا پہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और तमाम अहले मवद्दत उस फरेरे के नीचे होंगे, मौजूद होंगे। क्या कहना। आपका एक लक़ब है सामेउल नजवा। सामे कहते हैं सुनने वाला, सामे। जो बच्चे नहीं जानते हैं मैं उनके लिए पढ़ता हूँ ज़्यादातर, और जो मेरे मोहतरम उस्ताद हैं जो मुझसे भी कई गुना ज़्यादा जानते हैं, मैं उनके सामने तिफले मकतब हूँ, मैं उनके सामने क्या पढ़ सकता हूँ। सामे सुनने वाला, सामेउल नजवा यानी सरगोशियों का सुनने वाला, सरगोशियों का सुनने वाला। यासुबुद्दीन जो आपका लक़ब है, यासुबुद्दीन शहद की मक्खी की मलका, शहद की मक्खियों की मलका, ये तर्जुमा होगा यासुबुद्दीन का। शहद की यासूब, शहद की मक्खियों की मलका। तो आप क्या करार पाए, आप यासुबुद्दीन हैं, दीन के बादशाह हैं, सैयद और सरदार हैं, यासुबुद्दीन हैं। आपके लिए इतने अलक़ाबात हैं, इतने अलक़ाबात हैं कि जिनको शुमार करना बाइदज़क़ल है, उनको शुमार नहीं किया जा सकता है। सूरह मुदस्सिर की आयत नंबर 49, 50, 51 पढ़ लीजिएगा। इनको क्या हो गया है, कहीं पे तस्करा लिखा है, कहीं पे जंग लिखा है। इनको क्या हो गया है, ये जंग से या तस्करे से क्यों भाग रहे हैं? क्या ये वैशी गधे हैं जो शेर को देख के भाग रहे हैं? कसवरा, काफ सीन वो रे और घूमता हुआ है, कसवरा। कसवरा कहते हैं शेर बबर को। एक गधा होता है, एक वैशी गधा होता है। इनको क्या हो गया है, क्या ये वैशी गधे हैं तस्करा सुनने वाले या जंग से फरार अख्तियार करने वाले? ये वैशी गधे हैं जो शेर बबर को देख के भाग रहे हैं। अब आप इसकी तावील पढ़ लीजिएगा, तफसीर पढ़ लीजिएगा। कसवरा मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का मशहूर और मारूफ लक़ब है, कसवरा। आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा, बेहतर पता होगा कि शेर के कैफियत की वजह से बेशुमार उसके अलक़ाब हैं। हमज़ा भी शेर है, हैदर भी शेर है, गज़नफर भी शेर है, लैस भी शेर है, अब्बास भी शेर है। मैंने पढ़ा था एक जगह, अब्बास उस शेर को कहते हैं जिस शेर को देख के शेर राह फरार अख्तियार कर जाए, उसको अब्बास कहते हैं, जिसको देख के शेर भाग जाए, कसवरा। जब शेर अपने कछार में होता है तो क्या नाम होता है, जब वो अंगड़ाई लेता है तो उसका क्या नाम होता है, जब वह थोड़ा सा चलने लगता है तो किस नाम से पुकारा जाता है, जब वो अपनी रफ्तार को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता है तो उसका क्या नाम होता है, जब वो अपने शिकार को देख के बर्क रफ्तारी से दौड़ता है तो उसको क्या कहते हैं, जब वो उसको शिकार को पकड़ लेता है, शिकंजे में ले आता है तो उसको क्या कहा जाता है, जब वो उस शिकार को फाड़ डालता है, उसको मार देता है, उसको बिल्कुल ही तहस नहस कर देता है शिकार को, तो उसको क्या कहते हैं। और जब वो गाजी होके, शुजा होके, दिलेर होके पलट रहा होता है, यानी फातेह होके, तो उसको क्या कहा जाता है। ये सब अलक़ाबात जनाब अमीर मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को दिए गए हैं, सारे अलक़ाबात। आप देखिए दुनिया में बेशुमार ऐसे अहले इस्लाम में लोग मौजूद गुजरे हैं जिनको अभी भी अमीर अल मोमिनीन कहा जाता है, मोमिनीन के अमीर। ये बहुत आम इस्तेमाल में किताबों में, दीनी किताबों में पढ़ा जाता है, अमीर अल मोमिनीन। मगर इमामुल मुत्तकीन सिवाय मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के किसी को नहीं कहा जाता, दावे से कह रहा हूं। करम अल्लाह वजहो, ऐसा मुकर्रम चेहरा, ऐसा नुरानी बाबरकत चेहरा जिसको देख कर रब याद आ जाए, अल्लाह याद आ जाए, वो सिवाय मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के और कोई दूसरा नहीं है। इमामुल मुत्तकीन
मौला कायनात है। अमीर अल-मोमिनीन मखसूस है मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के लिए। हालांकि अगर हम 61 हिजरी में जाते हैं तो हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये कौल भी पढ़ते हैं कि जैसे असहाब मुझे मिले, न मेरे नाना को मिले और न मेरे बाबा को मिले। जबकि मौला कायनात के जो दुर्र नजफ थे, हम नजफ अशरफ जब जाते हैं तो वहां से कब्रिस्तान से, जो बहुत बड़ा कब्रिस्तान है नजफ अशरफ का, वादी सलाम, जहां लाखों लोग मदफून हैं, लाखों, 50 लाख से ज्यादा लोग कहते हैं कि बहुत बड़ी तादाद है, उसको आप देख ही नहीं सकते हैं, आपको हफ्ता लग जाएगा, पूरा हफ्ता लग जाएगा, मगर पूरा कब्रिस्तान आप नहीं देख पाएंगे। बेशुमार अंबिया की कब्र है वहां पर, बेशुमार, सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। वहां जब बारिश के कतरे गिरते हैं तो वहां से एक पत्थर बनता है, दुर्र नजफ। दुर्र नजफ, जब दुर्र नजफ को निकाला जाता है, अच्छा ये मैं आपको बता दूं, दुनिया में किसी और ना इसकी कोई कान है, न कोई पहाड़ है, न कोई और मुल्क है जहां से दुर्र नजफ मिलता हो। दुर्र नजफ असली खालिस सिर्फ सरजमीन नजफ अशरफ में मिलता है, वो भी वादी सलाम कब्रिस्तान में। जब बारिश के कतरे गिरते हैं तो वो दुर्र नजफ बनते हैं, वो दुर्र नजफ बनते हैं। तो हम जब ज़ियारत करके इंशाअल्लाह, अल्लाह आपको भी ले जाए, हम सबको नजफ अशरफ की ज़ियारत कराए, वहाँ से जब लोग आते हैं तो कहते हैं ये दुर्र नजफ मैं नजफ अशरफ से लाया हूँ, ये दुर्र नजफ ये मैं नजफ अशरफ से लेके आया हूँ। फ़ख्रिया हम दिखाते हैं, लोग दिखाते हैं, और दिखाना भी चाहिए, नायाब पत्थर है। अगर मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से कोई पूछे, अमीर अल-मोमिनीन आपकी नज़र में दुर्र नजफ कौन है, आप कहेंगे हज़रत सलमान फ़ारसी अलैहिस्सलाम, आप कहेंगे अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप कहेंगे हजर इब्न उद्दी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप कहेंगे हुज़ैफ़ा यमानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप कहेंगे जनाब मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप कहेंगे अज़बक़ इब्न नबाता रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप कहेंगे जनाब कंबर, अपने असहाबे बावफा का नाम लेंगे। मौला कहेंगे ये मेरे, असल में ये मेरे दुर्र नजफ हैं, ये मेरे दुर्र नजफ हैं। क्या कहना, क्या कहना। हम पत्थर लाके खुशी महसूस करते हैं कि ये दुर्र नजफ है, और मौला कायनात कहते हैं मेरे ये असहाब, ये मेरे लिए दुर्र नजफ हैं, दुर्र नजफ हैं। मेरी तरफ से आपको सबको बहुत बहुत मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत ज़हूर पुरनूर खाने काबा में जब जनाब फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा गईं, और चौथे रोज़ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और कहा दीवार काबा खुली, और उस वक्त तक मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने आंखें नहीं खोली थी। रहले रसूल पर मौला कायनात आए और रसूल खुदा ने कहा चची मेरी अमानत मुझे दे दीजिए। मौला कायनात को उठाया, रहले रसूल पर दिया, आंखें खोली, आंखें दो चार हुई, भाई ने भाई को देखा। पैदा हुए अली तो इमामत थी, साथ साथ पहली नजर को चेहरा सरकार चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कहते हैं या रसूल अल्लाह, अभी तो ऐलान नबूवत भी नहीं हुआ, अभी तो इस्लाम का ऐलान भी नहीं किया गया, और आप कह रहे हैं या रसूल अल्लाह ज़बूर सुनाऊं, तौरात सुनाऊं, इंजील सुनाऊं, सहीफ़े मूसा ईसा सुनाऊं, या कुरान मजीद सुनाऊं। तो ये मुत्तफ़क़ा अलैह है कि मौला कायनात ने उस वक्त जो तलावत की थी, सूरह अल-मोमिनून 23वां सूरह कुरान मजीद का, 23वां सूरह कुरान मजीद का, 23वां सूरह कुरान मजीद का 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 23वां
اس سورہ سے آیتوں کو منتخب کر کے آپ نے، کیونکہ قرآن ناطق کے ہاتھوں پر تھا، سورہ المومنون کی تلاوت کر کے آپ نے رسول خدا کو سنائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد کہتے ہیں، جب تہمت لگائی گئی جناب مریم سلام اللہ علیہ پہ کہ مریم تمہارا باپ اور ماں بہت شریف تھے، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ تو آپ نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اور اللہ نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا ہے۔ ابھی پیدائش ہوئی ہے دریائے دجلہ کے قریب، مقام دجلہ کے قریب پیدا ہوئے ہیں، اور ابھی گویائی ملی ہے، اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے کتاب دے کے مجھے بھیجا ہے۔ بتائیے کون سی کتاب لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت آئے تھے؟ اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ وہ کیسے ایمان والے تھے کہ ایمان لیا ہے؟ 3 جملوں کے اوپر ایمان لے کر آ گئے۔ ابھی سلسلہ چلے گا، یہ مولا کائنات سے منسوب ہے یہ، اور 13 رجب المرجب تک میں تقریباً ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا۔ آپ سے 10 بستہ گزارش ہے، کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کیا کریں، کیونکہ میں کمنٹس کا بے چینی سے انتظار کرتا ہوں۔ کمنٹ ضرور کیا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔